Good morning, dear parents and dear students. I am here again with a new Monday and a new English session. So, as we very well know that we have ended with the basic exercises to be done in literature with the chapter, and we have done lesson number 1, that is Rekha's new friend, and it was done in the last week. Okay, so today we'll be starting something new, and it is written on the board that what is today's topic, that is the alphabetical order. So before getting into the session start करने से पहले let me tell you the basics जो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, that you come across A B C D E F G. Yes, that is English alphabet. Alphabet is the collection of 26 letters A to Z. A to Z भी जो बोलते हैं हम. So A to Z there are 26 letters, and this collection we have gone through collective nouns. So alphabet is the collection of alphabet, the name alphabet, English alphabet जो हम बोलते हैं. English alphabet में कितने letters हैं? So your answer would be, ma'am, it is 26. A to Z, 26 letters. I should sing the song for you. I hope everybody enjoys it. So I'll not sing it again. Everybody remembers, and A B C D E F G up to Z, ये जितने भी 26 letters हैं, it is called the alphabet, the English alphabet. Okay. So अब English alphabet में when you were taught in nursery से play school से जब से आपको सिखाया गया, it is always A B C D. Why it is not B C D A? Why should we not write like it F G H A B C D? So it basically tells us कि हर चीज़ का जैसे एक प्रॉपर तरीका है करने का, and everything has a proper system. Like our days start with the sunrise, मतलब जब सूरज उगता है, रोशनी होती है, तब हमारा दिन शुरू होता है ना. तब हम काम करना शुरू करते हैं, उठते हैं, we brush our teeth, we have a shower and we get ready for school, and it is the basic routine. तो जैसे हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम है, the English alphabet also has a sequence. उसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस है जिसको हमने कभी चेंज नहीं किया, एंड इट इज नॉट सपोज टू बी चेंज क्योंकि वो फिक्स्ड है. ओके, सो आई एम राइटिंग इट फॉर यू. एवरीबडी नोज इट वेरी वेल व्हाट इज ABCD. सो A B C D. You can go with me around A B C D E F, then it's G H I, then it is J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and it is like it is written like X, and then I move here Y and Z. Okay. So I need not to count this. Count करने की जरूरत नहीं है, but I still do it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. So I am very good at counting. So I was not supposed to do it, but I just made it clear कि अभी भी किसी को भी अगर डाउट है कि 26 कौन से, so these are the 26 letters A B C D E F G H up to Z. So ये जितने भी letters हैं, इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम? It is called like English alphabet. जैसे हमने नाम दिया था ना इंटेलेक्टिव नाउन्स, like group of students class, group of what, like group of monkeys troop. तो वैसे द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ये सारे लेटर्स हैं, इनको वर्ड्स मत बोलो प्लीज कभी भी. एंड इट इज नॉट इट इज नॉट एन अल्फाबेट. अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमारा टॉपिक है द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब इसको जैसे मैंने आपको भी बताया, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस. हम इसको पहले नहीं लिख सकते स्टार्ट करने के लिए. ABCD is always ABCD. A से ही स्टार्ट होता है. एप्पल, ब बॉल, क कैट, द डॉग. ये हमने बहुत बार किया होगा, फोनेटिक्स है ना.
सो वो हमें एप्पल से ही सिखाते हैं, एंड इट एंड्स अप टू जी ओनली, हमेशा जेड ही लास्ट में आता है. सो इट हैज अ प्रॉपर सीक्वेंस और ये कभी चेंज नहीं होता है. सो इस सीक्वेंस में जैसे कोई एक लेटर लिखा जा रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना. जैसे आप करते हो मैथमेटिक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा वाला नंबर पहले रखना है, उसके बाद उससे बड़ा, देन बिगर, देन बिगेस्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर है. इफ वी कीप फर्स्ट द बिगेस्ट, then like smaller than that, then further move on to the smallest, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसको बोलते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू जी, तो वो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में वो लेटर्स लिखे जाते हैं, उस प्रॉपर सीक्वेंस को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है. एबीसी का जो हम सीक्वेंस लिखते हैं, जिसको हम वैसे ही लर्न करते हैं और वैसे ही रट चुका है अब, सो दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर. टू मेक इट मोर क्लियर, आई वांट टू टेल यू मोर अबाउट लाइक इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. सो वी विल बी डिफाइनिंग इट, एंड आई सपोज एवरीबडी टू राइट इट इन द नोटबुक. अब फिर से हम ग्रामर टॉपिक कर रहे हैं, सो यू आर सपोज टू राइट इट इन द grammar notebook. And if I have gone to that point, let me make it very clear. क्लास 3 आपको शायद बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे, बिकॉज पहले हमारे पास बुक सेट नहीं था, एंड नाउ ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू हैव द बुक सेट. बहुत से बच्चों के पास आ चुका है, लेकिन बहुत से बच्चों के पास अभी भी नहीं है. डोंट बी वरीड, सबको मिल जाएगा, बिकॉज इट वॉज सपोज टू लाइक टुडे मंडे से सारे बुक शॉप्स ओपन होने हैं, एंड यू विल बी एबल टू परचेज इट. एंड दोज हु हैव द बुक्स एंड नोटबुक्स, अब जिनके पास नई नोटबुक्स आ गई हैं, उनको वो डाउट है कि जो हमने पहले लिखा था वो सारा लिखना पड़ेगा. डोंट बी वरीड, सारा नहीं लिखना पड़ेगा. हम देखेंगे, विल जस्ट टेक आउट दोज पेजेस एंड बाइंड इट विद द न्यू नोटबुक, या फिर एक बार मीन टाइम उसको छोड़ दीजिए एंड डू इट इन द न्यू नोटबुक. जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो नई नोटबुक में स्टार्ट करेंगे. और जिन्होंने पहले से ही न्यू नोटबुक्स रखी थी, दैट इज ऑल फाइन, उनका बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो वही नोटबुक्स यूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग कि अब लिटरेचर और ग्रामर अलग अलग होगी. यस, लिटरेचर की अलग नोटबुक होगी, ग्रामर की अलग नोटबुक होगी. और ये कौन सा टॉपिक है, ये ग्रामर टॉपिक है. वी आर डीलिंग अप विद द ग्रामर टॉपिक, सो इसको भी आप ग्रामर नोटबुक में लिखेंगे. सो ग्रामर नोटबुक में आप पहले लिखेंगे डेट, क्लास वर्क, द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड ए टू जेड भी आप लिख सकते हो, 26 लेटर्स भी लिख सकते हैं, एंड देन विल कम अक्रॉस विद द डेफिनेशन. सो यू कैन आल्सो राइट the order in which, I hope this is clear. और आपको बहुत सुंदर सुंदर लिखना है. You have to write it very neatly in your notebooks. The order in which the letters are written the English alphabet is called alphabetical order. are supposed to write it. आप सबको ये लिखना है ग्रामर नोटबुक में. And this is basically how you can define alphabetical order. I have given you words. Okay, कि आप उसको define कैसे करेंगे. If somebody asks you alphabetical order क्या होता है, just define alphabetical order. The order in which the letters are written in the English alphabet is called alphabetical order. English alphabet यानी कि A to Z में जिस order में हम वो letters लिखते हैं उसको alphabetical order बोलते हैं. That is the first definition you are supposed to write in this chapter. आपको पहले ये लिखना है. I am giving you 1 minute to copy it down and be very good with your handwriting. So I hope this is done. Okay. So after this, I am supposed to give you some examples.
कि हमने अभी डेफिनेशन तो हमने देख लिया व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन इसको करना क्या है, लाइक हाउ वी कैन यूज इट, हाउ डू वी यूज इट. सबसे बेसिक एग्जांपल इज दैट इन द डिक्शनरी इफ यू हैव सीन. ओके, now when we are dealing with alphabetical order, you are supposed to just look at the dictionary if it is there in the house with you. अगर आपके पास dictionary available है, just go and grab it and just have a look at it. आप उसको देखो खोलकर. And what will be like the first thing, आपको first few pages पे कौन से letters के words दिख रहे होंगे? It will be from A. Then after A finishes, A वाले words finish होंगे, then it will be of B, then C. मतलब इसका बेसिक यूज कहाँ है, when we are going to sort out something according to the the initial the alphabet the letters it is comprising of. For example, एक छोटा सा एग्जाम्पल रियल लाइफ का जो हम यूज करते हैं, that is with us in the classroom. आपका अटेंडेंस रजिस्टर, have you ever seen your attendance, your teacher's attendance register, like your class attendance register? देखा है कभी आपने? मॉनिटर्स ने देखा होगा बहुत बार. So what happens to be supposed to be like there, जो स्टूडेंट नेम्स होते हैं वो क्या रेंडमली हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका नेम पहले, जिसकी छोटी सी हाइट है उसका बाद में. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. हर चीज़ का, जैसे मैंने सेशन स्टार्टिंग में बोला था, हर चीज़ का, हर प्रोसेस का एक प्रॉपर सिस्टम होता है. अटेंडेंस रजिस्टर का क्या सिस्टम है, दैट वी इफ़ आई हैव 32 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं उनके नेम्स लिखूंगी. इट कैन बी एनीवेयर, एनी लिस्ट, सारी लिस्ट देखूंगी. देन आई सॉर्ट आउट, सबके नेम्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट करूंगी. तभी आपने नोटिस किया होगा, दोज हु हैव नेम विद लेटर ए, जैसे कि मेरा भी था, आई वाज सपोज टू गेट रोल नंबर्स इन फर्स्ट फ्यू नंबर्स 1 to 10 में. अगर ज़्यादा ए वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उतने ही लगेंगे रोल नंबर्स, लेकिन यू आर सपोज टू बी इन द इनिशियल पोर्शन. आप हमेशा क्लास के आगे वाले रोल नंबर्स में रहते हैं. सो इट हैपन्स बिकॉज whenever we make a list, a formal list, और हमें किसी के नाम की लिस्ट देनी है किसी जजमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, इफ़ वी प्रोवाइडेड, वी बेसिकली सबसे बेसिक सॉर्ट करने का तरीका क्या है, अल्फ़ाबेटिकल. क्योंकि किसी और क्राइटेरिया को अगर आपको सॉर्ट करना है, उस चीज़ को लगाना है लिस्ट में नेम्स को, तो अगर कोई और क्राइटेरिया सोचो किसी की एज के अकॉर्डिंग लगाओ, तो पहले एज पूछनी पड़ेगी ना. Whenever we have names, नेम तो हमारे पास हैं, तो उसके ऑर्डर में तो सबसे ईजी है दैट वी शुड अटेम्प्ट विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उनके नेम्स पढ़ो, और वो मैं आपको भी सिखा रही हूँ कि कैसे सॉर्ट आउट करना है. सो दिस इज द बेसिक. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एग्जांपल्स कि कैसे हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आना चाहिए हमें. ओके, जो फॉर्मल लाइक ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, जिसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया अटेंडेंस रजिस्टर का, जो आपके जैसे लिस्ट जाती है व्हेन यू हैव अ क्लास लिस्ट, तो भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी. डिक्शनरी में इफ यू सी दैट इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सो लेट अस मूव ऑन विद फर्दर एग्जांपल्स. लेट मी टेक द बेसिक एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट्स. हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, लेट इट बी फर्स्ट वन इज हिंदी, then I have English. Whenever you write subject names, always keep first letter, initial letter capital, because it is a subject name, proper noun. So it will be then mathematics, and then it will be like arts. Okay, let it be. चार ही लेते हैं हम अभी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट्स. सो अगर मैं आपको बोलूँ इन सब्जेक्ट नेम्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सो बिफोर गोइंग इनटू दैट पोर्शन, इस एग्जांपल को मैंने दे तो दिया है आपको. लेट मी टेल यू समथिंग हाउ टू सॉल्व इट. आई होप दिस इज डन विद ऑल ऑफ यू. आपने ये लिख लिया होगा अच्छे से. ओके, सो द फर्स्ट थिंग, ये एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करने वाले हैं. आई हैव रिटन इट बिकॉज शायद इसी में आप दिमाग लगाते रहेंगे. उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स दे दूँ, है ना. प्रॉब्लम आ गई, अब आई गिव यू हिंट्स कि कैसे सॉल्व करनी है, एंड देन विल मूव बैक टू द एग्जाम्पल. फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज द इनिशियल. चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स. जो भी आपको वर्ड्स दिए हैं उनके सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर चेक करेंगे.
एंड देन वो फर्स्ट लेटर्स को सॉर्ट आउट करते हुए एक एक करके विल अरेंज इट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी हम सिर्फ फर्स्ट जो रूल मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। सो लेटर्स इसी को अभी और भी है, आई हैव लाइक इसमें बहुत सारे एक जैसे रूल्स हम बना सकते हैं। इफ इट इज द फर्स्ट लेटर इज सेम, अगर मैम ने मुझे ऐसे वर्ड्स दे दिए जिसमें फर्स्ट लेटर तो सबका ही सेम था, तो मैं किस वर्ड को पहले लिखूं, तो उसके लिए नेक्स्ट रूल मैं बताऊंगी। पहले इससे हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। आई हैव गिवन यू सब्जेक्ट नेम्स। अब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट लेटर चेक करके उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो चलो फर्स्ट लेटर्स को एक बार हाईलाइट कर लें, HEMA। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इन पे ध्यान देना है, हिंदी की बाकी स्पेलिंग को भूल जाओ। इनिशियल लेटर इज H, इंग्लिश में E, मैथमेटिक्स में M, आर्ट्स में A। अब फिर से ABC वाला गाना गाना पड़ेगा हमें, ABCDEFG, ओके व्हाटएवर आप गाते रहिए। सो ABCD, यू फाइंड A एनीवेयर, लाइक हम स्टार्टिंग अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, सो हम ये देखेंगे कि हम ABC में विच लेटर इज कमिंग फर्स्ट, सो वो वाला वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर 1 हो जाएगा। सो एज वी नो अल्फाबेट कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेटर A से स्टार्ट हो रहा है। डू यू सी A हियर? यस इट इज देयर। सो आर्ट्स जो है इट विल बी ऑन नंबर 1। अगर हम सॉर्ट आउट लिस्ट देखें तो आर्ट्स जो है वो पहले नंबर पे आएगा, बिकॉज उसका A कैपिटल सॉरी इनिशियल लेटर है। देन मूविंग ऑन फर्दर, B, डू यू सी B हियर? अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको बहुत फास्ट और बहुत जल्दी कर लोगे, बिकॉज ABC आपको वेरी सबको रटी होती है, बट स्टिल यू आर मोर एक्टिव देन मी। यस यू आर, बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है ऐसी चीजें करने में। सो A, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E, फाइंड E हियर? यस इट इज देयर, सो इट इज नंबर 2। सो नेक्स्ट जो वर्ड होगा दैट विल बी इंग्लिश हियर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आर्ट्स ज्यादा अच्छा है इंग्लिश से, नो, हम ये नहीं कह रहे कि वो ऑर्डर में ऐसे लिखा है तो आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज रॉन्ग हियर, दैट इज रॉन्ग। यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश बेस्ट है। सो नाउ ये सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। देन मूविंग ऑन फर्दर, ई हो गया, FGH, H आ गया हमारे पास, एंड देन दिस इज नंबर 3। यस हिंदी इज वेरी गुड and we love Hindi, we love to speak Hindi, but we have to speak English here. And then the last one, उसमें कोई choice नहीं है, उसके लिए आपको फिर आगे बोलने की जरूरत नहीं, because if you have the last word, let it be HIJKLM. So this is number 4 and it will be coming here. Okay, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। जस्ट थिंक, जस्ट फोकस ऑन द इनिशियल लेटर्स। सबसे पहले वाला लेटर कौन सा है उसको देखो, अंडरलाइन कर लो एक बार के लिए, सो दैट आपको एकदम से हाईलाइट हो जाए, एंड देन स्टार्ट योर सॉन्ग, ABCDEFGHIJKL whatever. So I just got it wrong, and then you can sort out the list. Now moving on further, I'll explain one more example. Okay, one more example of this rule only, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे sort out my friends name, my friends की लिस्ट दे दी मैं आपको, आप मुझे sort out करके बताएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मुझे उनकी लिस्ट बनानी है। So I have Seema, Arun, this is a proper noun, किसी पर्सन का नाम लिख रहे हो तो it should be starting with an initial letter capital, Nitin and Raj, okay let it be this only, 4 ही दोस्त हैं मेरे, ठीक है। Now as per the rule check the first letter of the words, like आप इसमें अंडरलाइन करेंगे SANR। Now we have to sing the song, ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST, इतना ही आता है। So I should take help from the pre-primary teachers. Okay, so Seema, Arun, Nitin and Raj. अब हम फिर से ABC में देखेंगे, as we have started with A, so A is here, so Arun is my best friend. No, this is not the criteria. Arun is not my best friend, मतलब he is my friend, but ये कोई और, I am telling you again, ये किसी और क्राइटेरिया पे हम सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है, just check the first initial letters and then put it there. Then B, no, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
best friend. So this is not, I'm just kidding. So I'm just putting my friend's name in alphabetical order. Then after Nitin, MNOPQR. So किसकी turn आ गई अब? The third number would be Raj, and the last one is Seema. She is not my good friend. No, she is. So we have just placed the names of my friends in alphabetical order. ये आपका solution है. Okay. So this is how. And I came across like friends name से मुझे एक और example याद आया. When you scroll the phone book, हम अपने पापा का phone या मम्मा का phone देखते हैं, contact list देखना फटाफट से. So it comes in alphabetical order. Wow, great. A very simple example. Dictionary नहीं है, phone तो है. Just open the phone book, contacts को open करो, and you will see कि A से start होंगे. Then B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले. So it is very simple. And alphabetical order बहुत जगह use होता है. So I hope this first rule is clear, and tomorrow we'll be solving more and more examples. अगर first letter same हो तो क्या करेंगे? अगर first और second दोनों same हो तो क्या करेंगे? So I'll solve all the problems. So what is supposed to be your homework then? इससे कोई homework नहीं मिलने वाला है. इसमें से अभी हमने start किया, so I'll not be giving you any homework from this exercise. We'll be solving it more. And your homework is, आपको थोड़ा सा मैं revision में लेकर जाना चाहती हूँ. So you have to learn my best friend. You are supposed to learn it. Okay? आपका homework है learn my best friend. Okay? This is your homework for Monday. और आपको week में एक ही English homework मिल रहा है. So I suppose I expect very very good response. और my best friend तो सबसे easy है. आपको friend के बारे में कुछ learn करने की जरूरत ही नहीं है. Just go through the paragraph and just enjoy it. So see you soon with the next session.